Dear student, I am Professor Harsh Patidar, Mechanical Department, Sister College, Bhopal. In the previous class, we have discussed about vibration, in which we have already covered free undamped vibration, free damped vibration, and in the last class, we have discussed about some forced vibration. अब उस forced vibration में we have discussed types of forces जो कि हमें स्टडी करना है. In that types of forces there are three types of forces, or mainly it is two types of forces. That is, a constant magnitude load with a frequency is applied to a vibratory system. Second is unbalanced force. In that unbalanced force there are two types of forces, that is rotary unbalancing force and reciprocating unbalanced force. So this is all about the types of forces. There are so many other types of forces is also there which comes under random vibrations. जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी एक सडन लोड आ गया, these comes under different categories. It may be possible that they are harmonic, so they are doing the things as they are, as it is f naught sin omega type, but they comes under random vibrations. जैसे कि अर्थक्वेक आया, सडन लोड आ गया, these are the different things. हमें स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है कि दिस इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. वन इज f naught sin omega t, second is unbalanced force. Now that unbalanced force has two categories. One is rotary unbalancing, second is reciprocating unbalancing. In rotary unbalancing, the unbalanced force equals to me omega square sin omega t, where E is the eccentricity. Second is reciprocating unbalancing. In that reciprocating unbalancing, the unbalanced force is f naught that is equals to mrc omega square sin omega t. ठीक है. So today we are going to derive the differential equation of motion when there is an external excitation force is present and it is harmonic in nature. मतलब अब मेरे जो वाइब्रेटरी सिस्टम है, उस सिस्टम में जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स की एप्लीकेशन है, दैट इज f naught sin omega t. उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रोल प्ले होता है वो अभी हम देखेंगे. ठीक है. तो यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, दैट इज स्प्रिंग, मास एंड डैम्पर सिस्टम, और जो डिस्टर्बिंग फोर्स लगा रहा हूं दैट इज f naught sin omega t. अब ये प्रेजेंट है, दिस इज नॉट फ्री वाइब्रेशन, दिस इज कम्स अंडर फोर्स वाइब्रेशन. तो जब इस मास का एफबीडी मैंने बनाया, f naught से इसको नीचे की तरफ पुल किया, तो जैसे ही नीचे पुल किया f naught sin omega t का फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू, अब अपर डायरेक्शन में फोर्सेस देख लेता हूं. स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा डाउनवर्ड, ये जो डिफ्लेक्शन आया, मान लीजिए x अमाउंट का डिफ्लेक्शन आया, तो स्प्रिंग फोर्स विल बी योर kx. नाउ डैम्पर में भी डिफ्लेक्शन आएगा एंड डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सो ch डॉट का अपोजिट डायरेक्शन में डैम्पिंग फोर्स. और मैंने पहली क्लास से आपको बताया है कि जब भी मास को डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले इनर्शिया फोर्स मुझे लगाना है, तो mx डबल डॉट इज योर इनर्शिया फोर्स. So this is the FBD of your mass when there is an external excitation force is present. ठीक. Now as per Newton's method, the equation of motion will be all upward vertical upward forces equals to all vertical downward forces. So we have mx double dot plus cx dot plus kx will be equals to f naught sin omega. ठीक है. Here in previous cases this is equals to 0. So from that equation, if this f naught sin omega t is not present, if this f naught sin omega t is not present, that is equals to 0. The equation of motion is mx dot dot plus cx dot plus kx equals to 0. This is damped free vibratory system.
Now if Ch dot is not present, f naught sin omega t is not present. The equation is mx double dot plus kx equals to 0, free undamped vibratory system equation. So this is all about the final equation in which all vibration things are covered. Here this is inertia force, this is damping force, this is spring, and this is the fourth element, that is external excitation force. Now I have divided this equation by mass, so the equation will be x double dot plus c by m x dot plus k by m x will be equals to f naught by m sin omega t. So this is the second order differential equation. Solution of this equation will be equals to, that is x equals to cf plus pi. ठीक है. Now cf is complementary function, pi is particular integral. In that case, if that RHS equals to 0, then pi is equals to 0, जो अभी तक अपन लास्ट 2 यूनिट्स में करते आ रहे हैं. But in that case RHS is not equals to 0, so there will be pi present. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेता हूं, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लूंगा. तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, first of all I have to make an auxiliary equation. Now for complementary function I have to make an auxiliary equation. अब मैं auxiliary equation बना लेता हूं इस equation से, this differential equation, इसको मैं equation नंबर 1 दे देता हूं. सॉरी, इसको नहीं, इसको दे देते हैं equation नंबर. ठीक है. तो now that differential equation, अब इसकी auxiliary equation बनानी है. तो CF के लिए मैं RHS नहीं लेता हूं, यही लेता हूं, मतलब LHS लेता हूं. तो इसके लिए क्या हो गया, that is x double dot plus c by m x dot plus k by m equals to 0, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है मुझे. बट जब मैं ये देख रहा हूं तो मुझे ये समझ में आया कि ये वाली जो इक्वेशन है x डबल डॉट प्लस c by m x डॉट प्लस k by m, अगर m से प्रोडक्ट करूं mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx equals to 0, that will be x, kx will be 0. So this is the damped free vibratory system. This equation is for damped free vibratory equation. तो यहां मुझे एक चीज समझने की बात है कि अगर ये damped free vibratory system की इक्वेशन है, यानी वहां पर कोई भी एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स नहीं है क्योंकि इक्वल्स टू 0 है. तो ये तो आप सॉल्व कर चुके हो ना लास्ट यूनिट में. लास्ट यूनिट में इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कम्स अंडर द वैल्यू ऑफ जीटा. इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, सिस्टम इज overdamped. If zeta equals to 1, system is critical damped. If zeta is less than 1, system is underdamped. ठीक है. And if I pick that underdamped system, क्योंकि बाकी के दो सिस्टम मेरे नॉन वाइब्रेटरी इन नेचर, मास नेवर क्रॉसेस इक्विलिब्रियम है, तो मैं इसको अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए लूंगा. तो अंडरडैम्प्ड सिस्टम में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कुछ टाइम के बाद एंड हो जाएंगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि वहां पर डैम्पर लगा हुआ है. ठीक है. समझने की कोशिश कीजिए. आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें डैम्पर लगा हुआ है. वो डैम्पर क्यों लगाया है? ताकि अगर उसमें कोई भी वाइब्रेशन हो वो उसको खत्म कर सके. इफ इट इज ओवरडैम्प, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, मैं सिस्टम नहीं बनाता. इफ इट इज क्रिटिकल डैम्प, तुरंत जैसे ही डिस्टर्ब हुआ इक्विलिब्रियम में आ गया. इट इज कॉस्टली एंड हमेशा जरूरी नहीं है हम बना पाए, तो हम सिस्टम को कुछ अंडरडैम्प बना देते हैं कि 2 या 3 साइकिल के बाद या n नंबर ऑफ साइकिल के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए. मतलब अगर डैम्पर लगा हुआ है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा ही. एंड दिस इज द सॉल्यूशन. दिस इक्वेशन गिव्स अ सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ जीटा. और अगर अंडरडैम्प की बात करूं तो दैट सॉल्यूशन इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कैपिटल X e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी sin omega dt plus 5 with a frequency of omega d and exponential decay e to the power minus zeta omega n t, वो वाइब्रेशन खत्म होंगे. That ends soon, sooner or later the vibration ends if damper is present. तो मैं ये मान रहा हूं कि इनिशियली जो सिस्टम में मैंने वाइब्रेशन दिए
तो जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने आएगा वो तो ये इक्वेशन है। अब अगर ये इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है उसके वाइब्रेशन खत्म हो गए। कैसे? अगर क्रिटिकल टाइम सिस्टम है तो इक्विलिब्रियम में आ गया, अगर अंडर टाइम सिस्टम है तो 2 साइकिल 3 साइकिल या 4 साइकिल के बाद एंड तो होने। इफ देयर इज अ डैम्पर देन वाइब्रेशन एंड्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, नंबर ऑफ साइकिल्स आगे जाएंगी, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल 10 mm का पहला एम्पलीट्यूड पहली साइकिल में, दूसरी साइकिल में 8, देन 6, देन 4, 2, 0। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो मैं ले रहा हूं, इससे जो सॉल्यूशन आएगा वो तो वैनिश होना ही है। तो यहां पर फॉर डेरिवेशन, और ये तो प्रैक्टिकल भी है कि जो अगर डैम्पर इज देयर सो वाइब्रेशन खत्म होना चाहिए, नहीं तो देयर इज नो नीड ऑफ डैम्पर। ठीक है, तो यहां पर मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं कि द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल वैनिश आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो यहां समझने की क्या बात है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वैनिश होगा ही कुछ टाइम के बाद, और उस कुछ टाइम के बाद ही मैं अपनी स्टडी शुरू करूंगा, तभी मुझे फोर्स वाइब्रेशन के कारण जो वाइब्रेशन है वो पता चल पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं उस इक्वेशन को लिया mx डॉट डॉट प्लस ch डॉट प्लस kx इक्वल्स टू f नॉट sin ओमेगा t को इक्वेशन लिया। अब मैं समझूं तो कि हो क्या रहा, तो मैंने जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, यानी उसका मतलब उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें जो वाइब्रेशन है वो खत्म कर देंगे। बट क्योंकि वहां पर फोर्स की एप्लीकेशन भी हमें देखनी है, तो कुछ टाइम के बाद जो वाइब्रेशन का एनालिसिस होगा दैट इज फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो द CF विल वैनिश आफ्टर सम टाइम। अब CF वैनिश हो गया तो सॉल्यूशन विल बी ओनली PI। सो जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल ही बचेगा। और अब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका फाइंड आउट करता हूं। तो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल पहले मैं आपको एक ऑपरेटर बता देता हूं, दैट ऑपरेटर व्हाट इट मींस। ऑपरेटर दैट इज d by dt दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल D and d by d square by dt2 that is equivalent to d square. This is your operator. ठीक है, तो अब मैं अपनी इक्वेशन को ऑपरेटर के टर्म में लेना चाह रहा हूं। तो देखिए यहां पर d2x by dt2 that is d square x। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, x डॉट डबल डॉट मींस d2x by dt2, so that is d square x plus c by m, x dot means dx plus k by m x that is equals to f naught by m sin omega। ठीक है, sin omega। सो दिस इज द इक्वेशन जिसको मैंने ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया, और अब मैं निकालना चाह रहा हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के न्यूमरेटर में क्या रखते हैं अपन, न्यूमरेटर में रखते हैं RHS। तो x विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, और पर्टिकुलर इंटीग्रल ही लेके चलो, दैट इज इक्वल्स टू f नॉट बाय m sin ओमेगा t अपॉन में डिनोमिनेटर विल बी योर ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी योर d स्क्वायर x प्लस c by m dx प्लस k by m x। और अब हम जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में भी ये x नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं, दिस। इसलिए मैंने x भी लिखा है यहां पर, सिर्फ इसके कोफिशिएंट लेते हैं, दैट इज d स्क्वायर प्लस c by m d प्लस k by m। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल गिव्स यू द सॉल्यूशन ऑफ ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम जब भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं और ऊपर साइन और कॉस है तो d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय, इफ साइन और कॉस, then
या साइन AT और cos AT, then d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर। इसका मतलब जहां पर भी ऑपरेटर है उसकी जगह कोफिशिएंट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो pi क्या हो गया मेरा, पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी दैट f नॉट बाय m sin ओमेगा t अपॉन में d स्क्वायर की जगह रखा माइनस a स्क्वायर एंड a विल बी ओमेगा, सो इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस c बाय m। देखो d की जगह नहीं रखना है, सिर्फ d स्क्वायर की जगह रखना है, प्लस k बाय m। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल्स टू f नॉट बाय m sin ओमेगा t अपॉन में ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके गया, ये क्या बचा, c बाय m d प्लस k बाय m माइनस ओमेगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, जब ऐसा d बचता है तो मैं क्या करूं, ऊपर और नीचे एक और d लिया तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय d स्क्वायर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड प्रोडक्ट कर दूंगा न्यूमरेटर का, तो दैट विल गोज अप टू लाइक दैट इज f नॉट बाय m sin ओमेगा t अपॉन में एज इट इज रहेगा ये c बाय m d प्लस k बाय m माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इनटू क्या करूं, c बाय m d माइनस k बाय m माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में c बाय m d माइनस k बाय m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस करके ऊपर नीचे कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसका प्रोडक्ट करते हैं अंदर, f नॉट बाय m तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, साइन को अंदर लेकर गया मैं, है ना, तो दैट इज c बाय m d ऑफ साइन ओमेगा t माइनस k बाय m माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा। ठीक, एंड दैट डिनोमिनेटर विल बी योर, देखो a प्लस b एंड a माइनस b, सो c बाय m का होल स्क्वायर d स्क्वायर। देखो c बाय m d का होल स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, c बाय m का होल स्क्वायर इनटू d स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर k बाय m माइनस ओमेगा स्क्वायर का। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब हम यहां से आगे चलते हैं। तो जब मैं ऑपरेटर की बात की थी, एंड दैट ऑपरेटर कम्स आउट टू बी d sin ओमेगा t, एंड हियर d इज योर ऑपरेटर, यानी डिफरेंशिएट करो इस sin ओमेगा t को विद रिस्पेक्ट टू t, सो दैट इज d of sin ओमेगा t will be equals to, डिफरेंशिएट किया, दैट इज cos ओमेगा t into ओमेगा। सो यहां पर मेरा क्या हो गया है, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं cos ओमेगा t into ओमेगा। ठीक, तो दैट कम्स आउट टू बी, द इक्वेशन कम्स आउट टू बी in that place d sin ओमेगा t की जगह हम पुट कर देंगे cos ओमेगा t into ओमेगा। So f naught by m in bracket sin ओमेगा t with respect to differentiate किया with respect to t, that it is ओमेगा cos ओमेगा t minus k by m into ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t and that इस यहां पर c by m भी, ठीक है, ये c by m, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्योंकि अगेन वी फाइंड दैट d स्क्वायर इज देयर, सो c by m का होल स्क्वायर और d स्क्वायर की जगह रख सकता हूं मैं माइनस d की जगह क्या रखा था, sin ओमेगा t का ओमेगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस k by m ओमेगा स्क्वायर का।
So this equation now we convert it into in the form of zeta. तो zeta के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मुझे पता है कि zeta will be equals to c upon में 2m ओमेगा n और 2 अंडर रूट के। तो यहां से मैं निकालना चाह रहा हूं द वैल्यू ऑफ c by m that is equals to 2 zeta omega n and the value of k by m will be equals to omega n square. So we have find two values that is c by m and k by m. अब मैं पुट करता हूं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। So that is equals to in numerator it is f naught by m within bracket c by m की जगह रखा 2 zeta and that is omega omega n, ठीक, cos omega t माइनस k by m की जगह रखा ओमेगा n स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज sin omega t, ठीक। नाउ इन न्यूमरेटर c by m की जगह रखा माइनस कॉमन निकाल दो एंड दैट टर्म दैट इज माइनस कॉमन निकाला मैंने, माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा c by m की जगह रखा 2 zeta ओमेगा n एंड दैट इज ओमेगा 2 zeta ओमेगा n का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस दैट k by m इज ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन आई हैव गेट। क्या करते हैं अपन, अब देखो जितनी भी वाइब्रेशन के डेरिवेशन हमने किए हुए हैं उन हर डेरिवेशन में मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि जब भी पूरी वाइब्रेशन में कहीं पर भी मुझे इस टाइप की इक्वेशन दिखे जहां पर साइन और कॉस मुझे मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसके कोफिशिएंट को अज्यूम कर लूंगा। तो कॉस वाले के साथ जो टर्म होगी दैट इज साइन एंड जो साइन के साथ वाली टर्म को मैं अज्यूम करूंगा कॉस। सो लेट 2 zeta omega n will be equals to कैपिटल X ले लेते हैं, कैपिटल X sin phi एंड ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल X cos phi। अब मैं ये बार बार इसको इसमें पुट करके नहीं बताऊंगा, वी कैन डायरेक्टली पुट इन एंड दैट कि जब इसकी जगह 2 zeta ओमेगा n की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा दैट इज x sin phi, तो इक्वेशन विल बी x sin phi cos omega t माइनस द इक्वेशन विल बी x cos phi sin omega t एंड दैट माइनस कम्स इन न्यूमरेटर और ये वाली टर्म को मैं अपोज कर दूंगा। सो माइनस अगर मैं यहीं से जैसे माइनस को ऊपर लेके गया तो दैट विल बी प्लस एंड दैट विल बी माइनस। सो ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x cos phi sin omega t माइनस दैट इज x sin phi cos omega t, ठीक है। चलिए यहीं पर अपन डायरेक्ट चलते हैं तो क्या हो गया दैट pi विल बी इक्वल्स टू f नॉट बाय m, तो मैंने माइनस ऊपर लेकर गया तो दैट कम्स फर्स्ट, क्या हो गया ये x cos phi sin omega t, x cos phi sin omega t माइनस x sin phi cos omega and denominator will be denominator we have, इसको अपन ने यहां रखा that comes out to be, इसको मैंने अंदर लेकर गया एंड माइनस तो कॉमन निकल ही चुका तो ये हो गया 2, माइनस कॉमन निकला था तो यहां से प्लस हो जाएगा, ठीक है, दैट इज प्लस when we put minus here if we common out minus so this will be plus
ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, उसको ऐसा नहीं है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, इसलिए हमें ये पूरा शुरू से ध्यान रखना। ये मिस्टेक स्टूडेंट्स के द्वारा होती है कि कहां पर हम गलती करते हैं, और सेम मिस्टेक्स में हम यहां पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो किसी भी चीज को। मैंने नीचे से माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाला हियर, दैट माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड माइनस ऊपर चला गया। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। सो वी हैव 2 जीटा। अब नाउ क्या कर रहा हूं मैं, इस ओमेगा स्क्वायर को इसके अंदर लेकर जा रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर, 2 ओमेगा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस दैट ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी। तो डिनोमिनेटर में पुट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर के लिए अज्यूम किया था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज x कॉमन निकल गया, sin ओमेगा t cos phi cos ओमेगा t sin phi। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू f0 by m, x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, sin a cos b, cos a sin b, दैट इज sin a प्लस b, और माइनस है तो sin a माइनस, and denominator will be your 2 zeta omega omega n का whole square plus omega n square minus। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं इन दोनों पैरामीटर्स को। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। स्क्वायर एंड ऐड किया मैंने, स्क्वायर एंड ऐड। जब मैंने स्क्वायर एंड ऐड किया तो दिस इज 2 जीटा ओमेगा ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, एंड साइन स्क्वायर फाई एंड कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो हियर वी गेट x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जीटा ओमेगा ओमेगा n का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाकी अभी tan phi की वैल्यू निकालते हैं। हियर वी गेट x स्क्वायर की वैल्यू मुझे ये मिल गई, बट यहां पर मैं देख रहा हूं डिनोमिनेटर विल बी सेम, 2 zeta omega omega n का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो इन दैट denominator I put x sin omega t minus phi upon में x square। So here that x and x, one x is cancelled, तो denominator will be your pi equals to f naught by m sin ओमेगा t माइनस phi अपॉन में कैपिटल x। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, और हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं कैसे। नाउ x, सिर्फ मैं इस x को ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं, सिर्फ इस x को ले रहा हूं। नाउ दैट x इक्वल्स टू हियर अंडर रूट, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू है तो दैट इज अंडर रूट, क्या हो गया अंदर, 2 जीटा ओमेगा ओमेगा n का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का। ठीक, बहुत अच्छी बात। नाउ मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां से इस टर्म में से ओमेगा n स्क्वायर बाहर निकालना। क्या निकाल रहा हूं मैं, बाहर, और इसको मैं पहले लिखूंगा टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। तो x will be equals to अंडर रूट, इस वाली टर्म में से मैंने क्या कॉमन निकाला, ओमेगा n स्क्वायर। तो क्या हुआ ये, जब इसमें से ओमेगा n स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो उसका होल स्क्वायर कॉमन निकलेगा, दैट इज ओमेगा n4। ठीक है, इस वाली टर्म में से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूं, ओमेगा n
स्क्वायर। तो जब ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो यहां पर उसका भी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा ओमेगा एन 4 और अंदर क्या बचेगा 1, क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया, और यहां पर क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे ही अंदर गया स्क्वायर तो क्या अंदर जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर जाएगा ना, तो क्या बचेगा ये ओमेगा एन स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ गया ओमेगा एन स्क्वायर, और जब माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा एन स्क्वायर तो ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इस वाली टर्म में से देखो, अगर इस वाली टर्म में से मैं ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो मुझे एक नीचे और एक ऊपर ओमेगा एन चाहिए, तो यहां पर से अगर मैं ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकालूंगा और उसका होल स्क्वायर तो दैट इज ओमेगा एन 4, क्या बचेगा अंदर 2 जीटा ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे ये देखें, जैसे ही ओमेगा एन 4 इसके अंदर गया तो क्या बचेगा स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर बचा तो क्या हो गया 2 जीटा ओमेगा इनटू ओमेगा एन स्क्वायर, और नीचे वाला ओमेगा एन से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 जीटा ओमेगा ओमेगा एन। सिंपलीफाई क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा इसमें से। अब मैं इस पूरी इक्वेशन में से ओमेगा एन 4 को बाहर निकालूंगा, तो जैसे ही अंडर रूट से ओमेगा एन बाहर आएगा तो क्या बचेगा दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा 1 माइनस ओमेगा। अब देखो इसको ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ये तो बाहर निकल गया 2 जीटा ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन का होल स्क्वायर। सो दैट x इज सिंप्लीफाइड इन दैट वे। अब मैं अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल में इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल में पुट किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस, सो दैट इज इक्वल्स टू हियर pi is equals to f naught by m sin omega t minus phi upon में that is in numerator, oh sorry denominator, here it is omega n square under root 1 minus ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन का। ठीक है, हियर ठीक है, नाउ लेट ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन इज इक्वल्स टू आर। यहां थोड़ा सा समझें, ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन इक्वल्स टू आर, दैट इज फ्रीक्वेंसी रेशियो। ओमेगा क्या है आपका, दैट इज फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सो दैट आर इज योर फ्रीक्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो अब मेरा जो इक्वेशन जो आपको इतनी बड़ी बड़ी से डेरिवेशन की इक्वेशन लग रही थी, that comes out to be particular integral f naught by m sin omega t minus phi upon में omega n square under root here 1 minus r square का whole square that is omega upon में omega n plus 2 zeta r का। So this is your particular integral under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square। ठीक है, now particular integral comes out like that. This is the solution of differential equation। और थोड़ा सा simplify हम इसको करेंगे, तो simplify जब मैं इसको कर रहा हूं तो क्या हो गया, इस ओमेगा n स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूं k by m। तो जब इसमें मैंने k by m पुट किया तो क्या होने वाला है इसमें, जब इसमें k by m यहां पर पुट करूंगा
तो PI will be equals to F0 by M sin ओमेगा t minus phi अपॉन में K by M अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद छोटा सा सिंप्लीफिकेशन और बचा है। Here we have that equation pi equals to f0 by m sin omega t minus phi upon में k by m under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole। Then m and m is cancel out and the final solution will be that x equals to f0 by k को ऊपर लेके गया sin ओमेगा t माइनस फाइव अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन और द सॉल्यूशन ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेटरी सिस्टम mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू f नॉट साइन ओमेगा t का सॉल्यूशन आएगा। That is x equals to f naught by k sin omega t minus phi under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square, where r is your frequency ratio. That this will be gives you the solution और simply मुझे समझ में आया it is हार्मोनिक। But एक चीज अब हम इसमें आगे देखेंगे, इनके वेरिएशन के कारण सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट है। थैंक यू।